Yes, dear students, once again we are here, and I hope this time we will be learning some more interesting things which I could not teach you before. So, I was teaching you uh, some very interesting things about new lesson that what to do and how to do. Okay, let me admit the students first so that everyone should plan the class properly and perfectly. There we have the students. Yep, yes. So, what I was teaching you, I was telling you about complex sentence, compound complex sentence. Now this thing was left, so that's why it is in my duty to teach you what is compound complex sentence. So this is the definition of compound complex sentence, which I will teach you right now, and I hope that you will not face any difficulty. So when you are making compound complex sentence, so this is the definition which is there on your screen. The sentence tags can also be combined. A compound complex sentence contains at least two independent clauses and at least one dependent clause. Once again, a compound complex sentence contains at least two independent clauses and one dependent clause. So there you can see the definition itself is giving you quite a strange meaning that when you are making compound complex sentence, so that time you must need what? You must need two independent clauses. Okay, so now let's start writing two independent clauses. Means for compound uh, complex sentence. Yes, when you are making compound complex sentence, so that time you must need two independent clauses. Okay, so two independent clauses. And with two independent clauses, you must need an independent clause. Right? An independent clause. So it means when you have two independent clauses and sorry. Okay, one dependent clause, fine. One dependent clause and two independent clauses. That time you can make a compound complex sentence. Now let's have an example. That what is the example we have? Suppose I said if you work hard. Okay, if you work hard, it's an example. It is, you know very well that this, if you work hard, it is called dependent clause. Okay, dependent clause. Fine. Why? Because you know very well if you work hard, it will not give you complete meaning if you speak it thousand times, billion times, okay, but you cannot get complete meaning by this. अगर आप इस जुमले को हजारों या लाखों बार बोल रहे तो आपको इसका मतलब समझ नहीं आएगा, मतलब इसका कंप्लीट नहीं हो पाएगा. सो इफ़ यू वर्क हार्ड अगर आप इसकी तस्बीह करते हुए बोल रहे हैं लेकिन फिर भी ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है. तो मुझे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एक डिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ेगी जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और उसके बाद आप दो इंडिपेंडेंट क्लॉज ले सकते हैं. तो मैं दो एग्जांपल्स देता हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ. नंबर वन क्या है, मैंने नंबर वन पे लिखा कि यस यू विल गेट गुड जॉब. ओके, आपको अच्छी जॉब मिलेगी. नंबर टू, अगर मैं ये नहीं लिखूँ यू विल गेट अ गुड जॉब, सो यू विल गेट अ गुड जॉब के बाद अगर मैं मजीद कुछ कहना चाहता हूँ तो क्या कहूँगा, यू विल गेट अ गुड जॉब, और मैंने कहा यू विल नॉट फेस
any trouble. Okay, you will not face any trouble. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुमला कह रहा है इफ यू वर्क हार्ड, सही। ये मेरे पास है डिपेंडेंट क्लॉज। यू विल गेट अ गुड जॉब, आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी, नंबर वन। नंबर टू, यू विल नॉट फेस एनी ट्रबल, आपको कोई मुसीबत पेश नहीं आएगी। अगर आप इसको कंप्लीट सेंस में कुछ ऐसे लिख सकते हैं, कंपाउंड, सही, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरह लिखना चाहते हैं, सॉरी, तो इसकी कुछ एग्जांपल हम ये लिख सकते हैं कि ये हो गया कि इफ यू वर्क हार्ड, फाइन, कॉमा लगाएंगे, इफ यू वर्क हार्ड, और उसके बाद हम कहेंगे इफ यू वर्क हार्ड के बाद यू विल गेट अ गुड जॉब, सही। अब आपने कहा कि इसको मैं मजीद कैसे बढ़ाऊं, देखिए तो एक बार कोमा आ गया, आप दूसरी बार कोमा ना लगाएं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट अ गुड जॉब, फिर कोमा लगा के आप कह रहे हैं, तो बेहतर है कि आप जुमले की नौयत देखें। अगर जुमला आपका पॉजिटिव है दोनों ही, तो आप उसमें एंड लगाएं। इफ यू वर्क हार्ड you will get a good job and you will not face any trouble, सही। तो ये आपके पास एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तैयार है। हाउ यू कैन से दिस पार्ट, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप देखें तो इस हिस्से को, ये क्या है मेरे पास, डिपेंडेंट क्लॉज है, सही। तो मैंने यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज लिख दिया। But if you follow this one, you will get a good job and you will not face any trouble. तो आपने देखा कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जब मैंने इस्तेमाल किए, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज से क्या पता चला कि ये मेरे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, सही। तो अब इसकी कुछ एग्जांपल्स मेरे पास यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इस स्लाइड में देख सकते हैं। यस, यहाँ पर अगर आप एग्जांपल देखें, that she completed her literature work, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ताकि आप जो है प्रॉब्लम ना हो आपको समझने में, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। Yes, she completed her literature review, but she still needs to work on her method section, even though she finished her method course last semester. अब आप सबसे पहले तो ये देखें और ये मुझे बताएं कि इसमें डिपेंडेंट क्लॉज कौन से हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन से हैं, हमें ये पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें ये पता नहीं होगा तो हम कहेंगे बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि बहुत हार्ड है और ये पता नहीं कैसे सेंटेंस है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा। तो सबसे पहले मुझे इस सेंटेंस का थोड़ा सा एनालाइज करना है। इस सेंटेंस को मैं जो है एनालाइज करने के लिए इस सेंटेंस को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इस सेंटेंस को समझने के लिए मुझे एक और स्लाइड की ज़रूरत पड़ेगी ताकि मैं आपको समझा सकूँ कि मेरी ये जुमला कैसे बना। ओके, सो यहाँ पर अगर आप इस जुमले को देखें तो लिखा हुआ है कि शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू। ये मेरे पास एक सेंटेंस है तो मैंने इसको अलग कर दिया। बट शी स्टिल नीड्स टू वर्क ऑन हर मैथड सेक्शन, ये मेरे पास सेकेंड सेंटेंस है, मैंने इसको भी अलग कर दिया। अब आपके पास तीन सेंटेंस हैं। Even though she finished her method course last semester. If I ask this question, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं कि इसमें कौन सा जो है डिपेंडेंट क्लॉज है, तो डिपेंडेंट क्लॉज के लिए मैंने आपको बताया था कि वो जुमला जो कि कंप्लीट मतलब नहीं देगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर वन सेंटेंस, शी कंप्लीटेड हर लिटरेचर रिव्यू, उसने अपना लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट कर लिया है। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही है, ये कंप्लीट मतलब दे रहा है, तो मैंने इसको नाम दे दिया कि वेल ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि जो सेंटेंस कंप्लीट मतलब देगा वो इंडिपेंडेंट क्लॉज कहलाएगा। ओके, यही पढ़ा है मैंने और यही मैंने पढ़ाया है कि जो सेंटेंस कंप्लीट मतलब देगा वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। ओके, यहाँ पर देखते हैं, बट शी स्टिल नीड्स टू वर्क ऑन हर मेथड सेक्शन, लेकिन उसे अभी भी अपने मेथड सेक्शन पे काम करने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में ये भी कंप्लीट सेंटेंस है, क्योंकि ये भी कंप्लीट मैंने दे रहा है, उसको अपने मेथड सेक्शन पे काम करने की ज़रूरत है। ये बिल्कुल कंप्लीट मतलब दे रहा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसको भी लिख देते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉज।
सो होप कि ये बात आपको समझ आ रही होगी। सही। लेकिन यहाँ पर तीसरा जुमला देखें तो थर्ड सेंटेंस में मैंने देखा कि इवन था का मतलब होता है अगरचे, हालांकि। इवन थो शी फिनिश हर मैथड्स कोर्स लास्ट सेमेस्टर, चलिए देखते हैं कि क्या ये मतलब कैसे है। इवन थो शी फिनिश हर मैथड कोर्स लास्ट सेमेस्टर, अगरचे उसने अपना मैथड कोर्स पिछले सेमेस्टर में कंप्लीट कर लिया। अगरचे, हालांकि उसने अपना मैथड कोर्स जो है पिछले सेमेस्टर में कंप्लीट कर लिया। तो अगरचे मैं इसको बार बार सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूँ तो मतलब मुझे एक और सेंटेंस की नीड पड़ रही है। So that's why this section is not complete. So अगर मुझे इस जुमले को लिखना पड़े है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, even though she finished her method course last semester। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको लिखूँ और उसके बाद इस सेंटेंस के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कॉमा लगा के जो है एक और सेंटेंस को यहाँ पर कॉपी पड़ेगा। देखें, even though she finished her method course last semester, she completed her literature review। सही, उसने अपनी लिटरेचर रिव्यू कंप्लीट कर लिया है। तो ये हमारे मेरे पास ये कौन सा सेंटेंस बना, आपको समझ आना चाहिए कि भाई ये एक सेंटेंस डिपेंडेंट है और एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट है। एंड यू नो वेरी वेल कि मैं ये आपको पढ़ा चुका हूँ कि एक सेंटेंस अगर डिपेंडेंट क्लॉज हो और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो तो उस सेंटेंस को मैं नाम देता हूँ क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, लेकिन मुझे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनाना, मुझे इस वक्त बनाना है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसकी तारीफ मैंने ये बताई कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक डिपेंडेंट क्लॉज तो मौजूद है, मैं यहाँ पर इसके आगे लिख देता हूँ डीपी, डिपेंडेंट क्लॉज, डीसी। ओके, तो डीसी से मुराद होगा डिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज मौजूद है और यहाँ पर मेरे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद है, आईसी। ओके, और अगर मैं देखूं कि एक और इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत है तो मैंने यहाँ से बट शी स्टिल नीड्स टू वर्क ऑन हर मैथड सेक्शन, इसको मैंने कॉपी करके यहाँ लिख दिया तो मेरे पास से सेंटेंस कंप्लीट बन जाएगा। सो नाउ गाइस, आई होप दैट यू गॉट दिस पॉइंट कि जब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर से। जब बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाता है तो हमें काम करना पड़ता है किस पर, कंपाउंड सेंटेंस पे। जैसे कि सपोज अगर आप एक एक इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले आप छोटे छोटे जुमले, एक एक जुमले कहते हैं, आई एम अ टीचर, आई वर्क हार्ड, आई स्पीक इंग्लिश, ऐसे जुमले बोलते हैं। लेकिन उसके बाद आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा जुमले बोले जाएं तो फिर आप कंपाउंड सेंटेंसेस पे जोर देते हैं कुछ इस तरीके से, आई एम अ टीचर एंड आई टीच इंग्लिश, I work hard, I work hard and I get first position। तो इस किस्म के दो दो सेंटेंसेस को बोलने की कोशिश करते हैं। But when you start speaking good English, so that time you want to make it better, आप उसको मज़ीद बेहतर बनाना चाहते हैं, so that time now you do not need simple sentences and compound sentences, but you move toward कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। उसके बाद आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस बने जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हो, जिसकी मैंने मिसाल दी थी, इफ़ यू वॉच मूवी यू विल गेट फर्स्ट पोजीशन, व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश यू विल लर्न सून, इवन इफ यू डू हार्ड वर्क यू विल नॉट गेट एनीथिंग। तो इस किस्म के सेंटेंसेस होंगे। जब आप ये थर्ड सेक्शन पे भी आ जाते हैं तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप चाहते हैं कि आप अंग्रेज़ों की तरह, इंग्लिश स्पीकर्स की तरह जो है वो बोलना शुरू करें। वो कब होता है, जब आपको कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मर्ज कर कर एक पैराग्राफ बनाने का तरीका आ जाए और उसको बोलने में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, even though she finished her math course last semester, she completed her literature review, but she still needs to work on her math section। तो जब हम ऐसे कहते हैं तो इसके बाद हमारी इंग्लिश पे चार चांद लग जाते हैं, मतलब हम अच्छी इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाते हैं। So that's why in writing it is most necessary thing that whenever you are subjecting anything and if you want to improve your English and you want to make it better, so that time you need to speak well। और speaking के लिए पहले स्टेप को लेना है, फिर सेकंड स्टेप को लेना है, फिर थर्ड स्टेप को और फिर फोर्थ स्टेप को।
अब मैं आपको बताऊँ सिर्फ और सिर्फ स्पीकिंग के लिए नहीं, इफ़ यू वांट टू राइट अ गुड स्टोरी सो दैट टाइम यू नीड दिस थिंग टू, आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब ये तो मैंने ख़त्म कर लिया, और you must do practice because you need to do practice more and more if you want to achieve your goal. अब मेरे पास शॉर्ट स्टोरी राइटिंग की एक छोटी सी चीज़ है जो कि मैं समझाना चाहूँगा, so that's why I want you to speak or learn this thing too. जब आप स्टोरी राइटिंग सीखना चाहते हैं so that time you are, yes, you are a new learner and you want to make it perfect. आप चाहते हैं कि इसमें perfection आ जाए, किस किस्म से, किस किस्म की चीज़ों में इस्तेमाल करूँ तो मेरी स्टोरी राइटिंग में परफेक्शन आ जाए। मतलब छोटे छोटे सेंटेंसेस सीखें। अब छोटे छोटे सेंटेंसेस के बाद आप चाहते हैं कि मेरी राइटिंग भी अच्छी हो, राइटिंग के साथ मैं स्टोरी लिखना भी शुरू कर दूँ, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि फर्स्ट सेंटेंसेस, फिर कंपाउंड सेंटेंसेस, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, और उसके बाद डायरेक्टली आप एक अच्छी स्टोरी लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी वो ये है कि शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए, कि अच्छा, शॉर्ट स्टोरीज से पहले मेरे पास कुछ और चीज़ें जो मैंने आपके लिए लिखी हैं वो ये हैं। सॉरी, मेरे ख्याल से इस पे कलर फिल कर लूँ ताकि, ओके। तो जब आप इसको, यस, थिंक इज बेटर, यस, शॉर्ट स्टोरी जब आप लिखते हैं तो शॉर्ट स्टोरी कितने पेजेस पर होनी चाहिए, और उसके बाद जब आप नॉवला की तरफ आते हैं, नॉवला नॉवल से थोड़ा सा छोटा होता है, उसको हम कहते हैं नॉवला। देखिए, शॉर्ट स्टोरी में हमें 100 to 15,000 जो है वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि 1 to 24 पेजेस तक हो सकता है। तो यू कैन सी सो मेनी शॉर्ट स्टोरीज, कुछ इससे भी कम हो सकती है, मतलब 100 वर्ड्स पे भी हो सकता है, 200 वर्ड्स पे भी, मतलब लेकिन 15,000 वर्ड्स पर हो सकता है। But when you want to learn Novella, so that time you start it from 30,000 words to 60,000 words, and it is composed on 100 to 200 pages. ये तकरीबन 100 से 200 पेजेस पर जाते हैं, और उसको हम नोवेला कहते हैं। ठीक है, नोवेला। So when you are competent now and you want to write some other stories and you have free time and you want to serve your time in writing, so that time you can see novel, नॉवल के अंदर आप 60,000 से लेकर 1 लाख तक वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड इट टेक्स ऑलमोस्ट 200 to 350 पेजेस। ठीक है, इतने पेजेस पे रहता है। उसके बाद हमारे पास होता है एपिक नॉवल। एपिक का मतलब ही होता है जो कि लंबी छोटी कहानियां होती हैं, वो तकरीबन कहाँ से कहाँ तक शुरू हो सकती हैं, यू कैन सी के तकरीबन 1,20,000 से लेके 1,20,000 वर्ड से लेकर 2,20,000 वर्ड तक जा सकती है, जो तकरीबन 400, 750, 800 पेज तक जो है वो होती है। So these are something which I think that it was necessary to tell you when you want to write some kind of short stories. हमारी जो कॉम है शॉर्ट स्टोरीज को भी सही तरीके से नहीं कर पाती। सही, तो ये तो खैर एपिक नॉवल तक पहुंचे तो बहुत बड़ी बात है। But there we have so many good writers, they do their best and they write so many things. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शॉर्ट स्टोरी लिखने में सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास है, that know your character. जब आप कौन से कैरेक्टर को ले रहे हैं, you must have some characters in your शॉर्ट स्टोरी। जब आप शॉर्ट स्टोरी बनाते हैं तो आपके पास कैरेक्टर्स होने चाहिए। उसमें हमारे पास कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो मेजर कैरेक्टर होते हैं और कुछ होते हैं माइनर कैरेक्टर्स। You have seen, you have watched so many films and cartoons where you see, you face some major characters every time and some minor characters which are just perform of 1 and 2 roles, जो कि 1-2 रोल के लिए आते हैं। तो आपको मेजर और माइनर रोल्स जो है वो सेट करने होंगे कि मेजर कैरेक्टर्स कौन से हैं और माइनर कैरेक्टर्स कौन से हैं। सो मेजर कैरेक्टर के अंदर हमारे पास जो चीज़ें होंगी उसको हम कहते हैं कि उसमें सबसे पहले हीरो। ठीक है, हीरो, हीरो को हम प्रोटोगोनिस्ट भी कहते हैं, प्रोटोगोनिस्ट। ठीक है, तो प्रोटोगोनिस्ट भी कहते हैं हम लोग। और जब आप हीरो के बाद हम और एक और शख्स को लिखते हैं, वो है हेरोइन, जो कि हमारी सॉरी के अंदर मौजूद होती है, तो उसको भी हम जो है वो जगह देते हैं। एंड द
biggest thing that which is actually called विलन फाइन। ये हमारे पास वो करेक्टर्स हैं जो कि मेजर करेक्टर्स में आते हैं। तो मेजर करेक्टर्स के साथ आपको माइनर करेक्टर्स को भी सेट करना होता है। दैट व्हाट इज माइनर करेक्टर। माइनर करेक्टर हमारे पास किसी भी शेप में हो सकते हैं। वो माइनर करेक्टर्स हमारे पास अगर हों तो उनको हम देखते हैं कि वेल दे आर सम काइंड ऑफ पैडल्स। ठीक है, अगर सपोज कुछ रेडी वाले हों या शू मेकर, सॉरी शू मेकर है, या सपोज पेडिस्ट्रेन, सही, या सपोज जो हमारे पास पेडिस्ट्रेन वगैरह होते हैं तो वो हमारे पास क्या होते हैं, माइनर कैरेक्टर्स होते हैं। तो यू मस्ट हैव टू सेट मेजर एंड माइनर कैरेक्टर्स फर्स्ट इन ऑर्डर टू राइट योर स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी बनानी है तो आपको कैरेक्टर सेट करना लाजिम है, अदरवाइज यू कैन नॉट डू अ टाइम एंड मेक अ गुड स्टोरी। अब उसके बाद जब हमने पहली चीज कर ली, किस करेक्टर्स को सेट कर लिया, तो हमारे पास अभी हम कहेंगे कि आउटलाइन योर शॉर्ट स्टोरी। आप अपनी स्टोरी को जो है एक आउटलाइन दें। इस स्टोरी को आउटलाइन देने का मकसद क्या है कि जब आप अपनी स्टोरी को आउटलाइन देते हैं तो आउटलाइन देने का मकसद क्या होता है वो भी देख लीजिएगा। इसको मैं आपको सही तरीके से बता दूं ताकि आप जो है बेहतरीन तरीके से इसको सेट कर सकते हैं। आप अपनी कहानियाँ, क्योंकि कुछ लोग कहानियाँ जब बता रहे होते हैं तो ना सर का पता होता है ना जड़ का पता होता है कि भाई ये कैसी कहानी है। बस वो शुरू करते हैं ख़त्म करते हैं, पता नहीं चलता कि शुरू कब हुई थी और कब ख़त्म हुई थी। So this is called the outline, that how would you take start। अब start करेंगे कैसे लेंगे, how will you start the story, start कैसे लेना है, the point of view you will use, किस point of view को यूज लेना करना है, मतलब एक फनी कहानी है या सपोज एक जो है वो ट्रेजेडी है, सही, या आपको लगता है कि एक किस्म का मर्डर हुआ, क्या हुआ, शॉर्ट स्टोरी आप बता रहे हैं। सो यू मस्ट आउटलाइन दिस थिंग कि कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काम करना है। तो शॉर्ट स्टोरी के अंदर आपको ये चीज़ लाजमी देखनी है। देखिए आप ट्रेजेडी पे काम कर रहे हैं, फनी स्टोरी है, या सपोज कोई शख्स जो है किसी की डेथ पे ख़त्म हुई है, सही, या एक मजाक पे, मॉकिंग पे, जो भी है। एंड हाउ यू विल गेट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द मेन इशू, और आप जो मेन इशू है उसको शुरू में कैसे लाएंगे उसको, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि एक कत्ल हुआ, ऐसे तो नहीं कह सकते। तो दैट्स व्हाई हाउ विल यू ब्रिंग देम इन द बिगिनिंग टू द मेन इशू। ये जो आप स्टोरी को किस तरीके से जो है मेन इशू की तरफ लाएंगे, क्योंकि कहानी ऐसे चल रही होती है जो है उसके अंदर कुछ जो है क्लाइमेक्स आ जाता है, कुछ क्लाइमेक्स सीन आ जाता है, तो उसको हम कहेंगे मैन इशू की तरफ। उस मैन इशू की तरफ आने का फिर होगा व्हाट हैपेंस एट द क्लाइमेक्स। ठीक है, मतलब शॉर्ट स्टोरीज के अंदर जो है क्लाइमेक्स होता है, सीन के आखिर में हुआ क्या, क्या हमें पता चला, तो वो क्लाइमेक्स कैसे होगा, जिसको हम कह सकते हैं कि भाई एक टर्निंग पॉइंट हो। तो टर्निंग पॉइंट आपको लाना है अपनी स्टोरी के अंदर। एंड यू नो वेरी वेल दैट थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज यू फेस एवरी डे। हजारों स्टोरीज आप फेस करते हैं, लेकिन उनको लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो उन स्टोरीज को लिखने के लिए आपको सबसे पहले कैरेक्टर्स का खास क्या करना है, दूसरी चीज आउटलाइन का। और आउटलाइन में आपको बता रहा हूँ कि पहले वो क्या होती है। नंबर 4 दैट्स कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ द मेन इशू। उसको अब मेन इशू को जो है ला के उसको जो है पेश करना है, कि मतलब अपने करेक्ट इस स्टोरी के अंदर सेट करना है कि किस तरीके से मुझे इसको सेट करके दिखाना है। एंड देन द वेरी एंड, आखिर में क्या होगा ये भी आपको बताना है, बिकॉज यू नो कि मेरे जितने भी रीडर्स हैं, पढ़ने वाले हैं, क्या वो सुनकर जो है दुखी हो जाएंगे। तो मुझे स्टोरी में कैसे टर्निंग पॉइंट लानी है कि मतलब उसको मैं खुश करूँ या हम पे ख़त्म कर दूँ। सो यू विल हैव टू थिंक अबाउट इट। Keep in mind that your story can end very abruptly or you can flesh in your out until there is a satisfying ending। आप अपने दिमाग में इस चीज़ को तो रख लें या रीडर्स को बताएं कि समरी के अंदर ही कि हाँ इसके बाद एंडिंग इसकी ऐसी होती है, ताकि वो जो रीडर है पढ़ने वाला उसके दिल में पहले सेटिस्फिकेशन हो कि हीरो जो है वो प्रोटोगनिस्ट जो है वो मर जाएगा या हीरोइन मर जाएगी, या सपोज दोनों मिल जाएंगे, या क्या कहते हैं एक शख्स खजाने के निकला तो उसको खजाना मिल गया। सो व्हाट शुड बी द एंडिंग यू मस्ट टेल देम इन द बिगिनिंग, क्योंकि उसके लिए हमें फिर जो है क्या कहते हैं इंडेक्स बनाना पड़ता है, वो सब कुछ हम लिखते हैं। Viewers, this is really up to you as an author to decide। आप जब ऑथर बनते हैं, आप जब कोई स्टोरी सुनाने वाले बनते हैं,
तो आप ऑथर हैं। अब आपके पास वो चीज़ है कि किस तरीके से स्टोरी को लाई जाए। सही, तो ये जो मामलात को सेट करना है, मतलब सिनेरियो को सेट करना, ये बहुत बड़ा काम है और हर किसी के काम नहीं है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं स्टोरी के अंदर आउटलाइन सेट करना। आउटलाइन, सही। ये आपने आउटलाइन कर दिया कि एंडिंग क्या होगी, स्टार्टिंग क्या होगी, कैरेक्टर्स कैसे मिलेंगे, सही, क्लाइमेक्स क्या होगा, टर्निंग पॉइंट क्या होगा, मेन इशू कैसे जो है आएगा, मेन इशू कैसे रिजॉल्व होगा। इस सब को आपको आउटलाइन में पहले ही लिखना है कि वेल दिस इज माय स्टोरी एंड आई एम राइटिंग। लेकिन इसको पहले एक अलग पेज पे लिखना है कि अब मुझे यहाँ से यहाँ तक जंप करना है, यहाँ से यहाँ तक लाना है। कुछ ऐसे पॉइंट्स जो कि आपको लगता है कि सही नहीं, वो भी हटाने हैं। ओके, सो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। जब ये बात हो जाए, कंप्लाई, जब आपने ये बात कर दी और करने के बाद आप कहते हैं कि हाँ मुझे जो है इतना उबूर तो हो गया है कि वेल किस तरीके से मैं करूँगा। अब जो भी चीज़ें आपने दिमाग में सेट की हैं, नंबर 3 पॉइंट वो ये है कि वेल डन इज बेटर देन परफेक्ट। मतलब ये है कि आप परफेक्ट से भी अगर कोई अच्छा अमल करना चाहते हैं तो उसको पहली फुर्सत में लिख डालें। अगर आपने उसको नहीं लिखा, so thousands of stories which emerge in our mind in daily basis and they vanish, वो गायब हो जाती हैं जब तक हम उसको ना लिखें। आइडियाज हो, कुछ भी हो, तो एक छोटी स्टोरी लिख रहे हैं, आप कहेंगे ये स्टोरी में लिखूंगा, और फिर स्टोरी बिल्कुल हट जाती है। सो दैट्स व्हाई यू मस्ट राइट इट, ड्राफ्ट कर दो उसको जितनी जल्दी हो सके। उसको जो है लिखने के बाद ये मेरे एक सेट है, इसको मैंने इस तरीके से जो है वो ले जाना है, ये सब कुछ आपको पहली फुर्सत में लिखना है कि स्टार्टिंग कैसी होगी, एंडिंग कैसी होगी, बीच में किस तरीके से जो है वो पॉइंट्स जो है वो आएंगे, वो सब कुछ आपको लिखने हैं। क्लियर? अच्छा, कुछ और बातें जो मुझे आपको बतानी थी वो ये थी कि जब आप स्टोरी लिखेंगे, तो स्टोरी लिखने के अंदर आपके पास एक बहुत बड़ा फन तो ये होगा, जो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए पॉइंट। वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग करना। व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग? ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है दैट ब्रिंग all the topics or names which should be characterized, characterized कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करना के मतलब पूरे जितने भी आइडियाज हैं, एंड bring all the ideas and jot down them, ठीक है, jot down them। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक बड़ा जबरदस्त खूबसूरत अमल है जो कि इंग्लिश मैन हर वक्त करते रहते हैं, लेकिन हमारी पूरी दुनिया इससे हटी हुई है। वो क्या अमल है कि वेल जैसे ही करेक्टर्स आए, जैसे ही माइंड में कुछ चीज़ें जो हैं आपके ब्रेन में आ रही कि इसके बारे में लिखना चाहिए, सो हम उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं कि भाई आपके दिमाग में कुछ नए आइडियाज़ आ रहे हैं। अब उन नए आइडियाज़ को एक पेज पे होना चाहिए। अब उस पेज पे होना चाहिए, इसके लिए हम ब्रेनस्टॉर्मिंग का अमल करते हैं। और उस ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हम क्या करते हैं, आई विल सजेस्ट सम गुड पॉइंट्स दैट व्हेन यू आर राइटिंग दीज पॉइंट्स, जब आप इन पॉइंट्स को लिखते हैं, ओके, वॉइस इज नॉट कमिंग। Is my voice clear to all of you? Because one of you is saying that my voice is not clear. अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं तो मुझे बता दे, क्योंकि मेरी वॉइस असल में जब मैं टाइप कर रहा होता तो शायद उसमें वॉइस जो है वो थोड़ी सी हट जाती है। तो क्या वॉइस मेरी क्लियर नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर आवाज़ आ रही है। क्लियर है, ओके, ठीक है, सही है। यस सर। Okay, just one of you is facing this trouble, so if he checks his um, headphone, that what is happening there. सो ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब मैंने क्या बताया कि आपके दिमाग में जितने भी आइडियाज आ रहे हैं, करेक्टर्स आ गए, थीम आ गया, थीम के बाद सपोज के हाँ, हाँ, मैं ट्रेजिडी वाले सीन है, जोरी वाले सीन है, वो चीज़ आपके जहन में क्रिएट हो गई। वो क्रिएट होने के बाद अगर जहन में ही रही तो फिर ये सबसे ज़्यादा बड़ा बुरा अमल है। आप उसको डायरेक्टली कॉपी में जब लिखेंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये चीज़ क्या हो गई मेरे पास, ये मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग कर दी। ओके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद, अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग में के बता रहा था कि कैसे करेंगे, कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद जो है अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करना चाहते हैं, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए एक बेहतरीन अमल ये है
वो ये है कि अगर आप उसको इस किस्म के ऐसे सेट कर दें, नो इट इज नॉट हैपनिंग। अच्छा, अगर इसको ऐसे सेट कर दें तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद सपोज अगर आप इसको ऐसे सेट कर देते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर और उसमें कुछ लिखना शुरू कर देते हैं, सही, कि अगर आपका टॉपिक है कि स्कूल बंकिंग, सही, तो आपने स्कूल बंकिंग को लिख दिया और उसके बाद अभी दोबारा से एक और जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए काम कर लिया, दैट व्हाट टू डू। आपने बहुत सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग करे, तो इसके लिए आपने क्या किया कि बहुत सारी चीज़ों को अपने पास रखा। ये जो बहुत सारी चीज़ों को मतलब आस पास आप इसके लिखेंगे तो उसको आप कुछ ऐसे लिख सकते हैं, फाइन। तो ये आपने इसके बिल्कुल साथ में ही ब्रेनस्टॉर्मिंग करके स्कूल बंकिंग में क्या क्या हुआ था, कैरेक्टर्स कौन कौन थे, नंबर वन आपने इसमें लिखा। एक और आपने यहाँ पर दूसरा मेंशन कर दिया, सही, तो उसमें भी आपने ये मेंशन कर दिया कि वेल सेकंड में एक और, यस, कैरेक्टर्स लिए। कैरेक्टर्स के बाद सेकंड में यहाँ पर आपने लिख दिया कि कैरेक्टर्स कौन कौन थे, और उसके बाद ये कौन सा वाक्य था, फनी थी कहानी, अगर फनी नहीं थी तो ट्रेजेडी थी, सही। इस किस्म से आपको बताना है एंड यू विल हैव टू फिल ऑल द थिंग्स अराउंड इट। आप उसके इस एक सर्कल के आसपास बहुत सारे सर्कल बनाएंगे। इसको हम कहेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग, दैट यू हैव ब्रोड योर आइडियाज इन ऑनटू द पेपर। आपने एक पेपर पे सारी की सारी जो है चीज़ें ले आए, ये कैरेक्टर्स मेरे ये हैं, ट्रेजेडी ये हुई थी, माइनर कैरेक्टर्स इसमें ये वाले हुए थे, और प्लेसमेंट ये वाली थी। ओके, प्लेस कौन सा था, आपने प्लेस मेंशन कर दिया कि प्लेस जो है वो ये था, सही। सो ईच एंड एवरीथिंग शुड बी filled here in brainstorming factor. When you are done with brainstorming, जब आप brainstorming करें तो उसके बाद क्लस्टरिंग करनी है। क्लस्टरिंग का मतलब क्या है कि आपको प्लेसमेंट करनी है कि वेल पहले कौन लोग मिले, दैट हु वर देयर वेरी फर्स्ट, कि कौन लोग थे जो सबसे पहले मिले। ओके, प्लेसमेंट कौन सी थी, प्लेसमेंट के बाद क्या कहते हैं, टाइम क्या था, सही, टाइम के साथ साथ जो है, और हाँ कौन कौन मौजूद थे, हाउ मेनी पीपल वर देयर, इन सब को ला के दिखाना है। और फिर स्टार्ट कैसे हुआ, हाउ डिड द ट्रेजेडी स्टार्ट कैसे हुई। ओके, जनरल डिस्कशन बतानी है, तो ये आपको बिल्कुल जहन में एक काम करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ ताकि आपके पास ये चीज़ें सेट रहें। अच्छा, मेरे पास टाइम इतना नहीं है, तो इसलिए दैट्स व्हाई यू पीपल मस्ट डू दिस थिंग। और खुद से एक छोटी सी स्टोरी डिज़ाइन भी करनी है। मैं आपको बता देता हूँ कि करेक्टर्स मेंशन करने हैं। ओके, कैरेक्टर्स के बाद मेन थीम क्या होनी चाहिए, मेन थीम के बाद जो है टाइमिंग, सही, प्लेसमेंट कौन सी है, प्लेसमेंट के बाद स्टोरी टाइप, सही, स्टोरी टाइप किस किस्म की स्टोरी है। ओके, स्टार्ट कैसे होना है इसका, स्टार्ट एंड एंड, सही, वो स्टार्ट एंड एंड कैसे है, स्टार्ट मतलब शुरुआत कैसी है और एंडिंग कैसी है, तो स्टार्ट एंड एंड दोनों सही होने चाहिए आपके। एंड उसके बाद जो हमारे पास कुछ और मज़ीद चीज़ें जो इसमें आनी चाहिए वो ये है दैट माइनर करेक्टर्स, सही, माइनर करेक्टर्स क्या है इसमें, माइनर करेक्टर्स के साथ जो है हमारे पास हाउ मच टाइम नीडेड, कितने टाइम में इस स्टोरी को ख़त्म करना है, ये भी याद रखना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि शॉर्ट स्टोरी सुना रहे हैं और वो नॉवला की जगह ले लें, जैसे मैंने आपको बताया ना, तो ऐसे कि नॉवला की जगह ले लें, या अगर जो शॉर्ट स्टोरी सुना रहे थे पता चला वो नॉवल बन गया, 2-3 दिन हो गए वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। सो इसीलिए आपको ये सब चीज़ों को खास करनी है। तो ये अगर आपके पास क्लियर है, प्लेसमेंट है, स्टोरी टैब है, स्टोरी एंड स्टार्ट कैसे है, एंड कैसे है, माइनर कैरेक्टर्स हैं, हाउ मच टाइम नीडेड है, सही, और हाउ डिड द ट्रेजेडी ओके बिगिन एंड एंडेड, सही, कि ये जो ट्रेजेडी वो कैसे शुरू हुई या कैसे ख़त्म हुई, वो आपको सब कुछ बताना है, सही। और इसके अलावा अगर सपोज आपको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको हम कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट क्या है वो भी आपको मेंशन करना है। एंड ऑल दीज थिंग्स विच यू आर
which you are doing in a story type, किसी भी स्टोरी में अगर आप ये लिख रहे हैं तो याद रखिए इन सब चीज़ों को खास ख्याल करना है। तो इसको ऐसे सेट करें क्योंकि हर एक शख्स फिर अच्छा स्टोरी टेलर नहीं होता। बहुत कम लोग होते हैं जो कि अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं, वरना बहुत सारे लोगों को देखा गया कि वो अच्छे स्टोरी टेलर नहीं होते। वजह क्या है? क्योंकि उनकी स्टोरी टेलिंग सही नहीं होती। अच्छा, जब कर ले तो उसके बाद आपको उसको टाइटल भी देना है, दैट व्हाट टाइटल वुड यू गिव। टाइटल के लिए आप खुद भी वो कर सकते हैं, और इफ यू वांट सर टू आस्क। नॉइस क्या नॉइस आ रहा है। क्या हुआ? ओके, अगर आप टाइटल देना चाहते हैं तो टाइटल का मतलब है कि एक ज़बरदस्त थीम दें कि क्या थीम होना चाहिए स्टोरी के लिए। सो उसके लिए आप ये करेंगे कि यू कैन आस्क योर रीडर्स, आप रीडर्स से भी पूछ सकते हैं, इफ़ यू थिंक दैट यू आर बेटर देन देम, आप उन सबसे अच्छा टाइटल दे सर सकते हैं। तो आप, नॉइस बहुत ज़्यादा आ रहा है। नॉइज़ हो रहा है? आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर हियर। सब चीज़ क्लियर है मेरे ख्याल में, यहाँ पर तो कोई नॉइज़ नहीं नहीं है। और तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों का खास कर करना है कि व्हेन यू आर गिविंग टाइटल, टाइटल में भी ये बात याद रखनी है कि वेल थीम ऐसा हो कि आप जो है आई कैचिंग हो। ठीक है, जब कोई शख्स थीम को पढ़े तो कहे कि वाओ, इट्स अ गुड स्टोरी, ये एक अच्छी स्टोरी हो सकती है। इट कैन बी रीडिंग टाइप स्टोरी, ओके, ये टाइम स्पेंडिंग स्टोरी हो सकती है। तो मेन थीम को आपको अच्छा रखना है। ठीक है, इसका भी खास ख्याल करना है, क्योंकि कभी कभी लोग थीम बहुत अच्छा बताते हैं और स्टोरी बिल्कुल नहीं होती, और कभी कभी थीम बहुत बुरा होता है तो लोग अच्छी स्टोरी भी मिस कर देते हैं।